جی بالکل، اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کی سینئر رہنما و ایم پی اے صوبیہ شاہد ہمارے ساتھ موجود ہے۔ میڈم، سب سے پہلے اپنا مختصر تعارف کیجئے کہ آپ کہاں سے ہیں، آپ نے ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی، آپ کی آبائی گاؤں کون سا ہے، اور آپ نے اعلیٰ تعلیم کس یونیورسٹی اور کس سبجیکٹ میں آپ نے حاصل کیا ہے؟ میرا نام صوبیہ شاہد ہے۔ میں بیسکلی لوور دیر رباط گاؤں سے ہوں، اور میں نے ابتدائی تعلیم جو ہے اپنے گاؤں رباط میں کیا ہے، اور پھر اس کے بعد سوات گئے تھے، سوات میں کیا ہے، پھر واپس سوات سے پھر رباط دیر لوور جو ہے، اور اس سے پھر پشاور میں آئی ہوں۔ پھر پشاور سے ادھر سے میں نے میٹرک کیا، اور پھر فرنٹیئر کالج سے آگے میں نے بی اے کیا، پھر ایم اے اسلامیات کر دیے۔ آپ نے سیاست میں آنے کا فیصلہ کب اور کیوں کیا؟ کیا آپ کے خاندان میں پہلے کوئی سیاست میں موجود تھا، یا یہ آپ کی ذاتی فیصلہ تھا؟ نہیں جی، ہمارے خاندان میں تھے میرے ابو کے، ہمارے دادے پردہ ہے، ابو کے انکل ہے اخونزادہ بہرور سعید سینیٹر، وہ پہلے سے مسلم لیگ میں تھے، اور اسی وقت سے مسلم لیگ سے ریلیشن تھی، اور بچپن سے ہی، اور اس میں ہم نے مسلم لیگ جوائن کی، اور آگے سے بچپن سے یہ شو پر دیکھتے آ رہے تھے، تو آپ ادھر سے اپنی سیاست کو عبادت سمجھ کے کر رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون میں شمولیت کی بنیادی وجہ کیا تھی، اور آپ کے نزدیک سیاست کا اہم مقصد کیا تھا؟ دیکھیے، میں نے آپ کو بتایا نا کہ میں اگر سیاست کر بھی رہی ہوں تو سیاست کو عبادت سمجھ کے کر رہی ہوں، خدمت خلق کر کے، کیونکہ لوگوں کے حقوق کا، اور خاص کر پاکستان میں ہمارے بہت سے اس طرح بھائی ہیں جس کو پتہ بھی نہیں ہے کہ کس چینل سے کہاں سے جو ہے وہ کام ہو سکتا ہے، یا بالکل ٹھیک ٹھاک کام ہوتا ہے، لیکن ان کی خود کی ایسی ناسمجھی ہوتی ہے کہ اس کو طریقے کی سمجھ نہیں ہوتے، اس کے پروٹوکول کے مطابق وہ نہیں جاتے، یا وہ ڈائریکٹ کرنا چاہتے ہیں، تو بعض کام تو اسی طریقے سے ہو جاتے ہیں، یا بعض جو ہے اگر کوئی کسی کے ساتھ زیادتی کر رہا ہو، اور اگر اس میں ہم کال کریں، بات کریں، اسمبلی کے فلور پہ بات کریں، تو ہر بندے کو اپنا حق مل جاتا ہے۔ تو اسی لیے میں ہر جمعرات کو، آپ نے آج دیکھ بھی لیا ہے، خود آئے تھے، تو میں لاسٹ 12 سال سے جو ہے ایک دن میں نے مقرر کیا ہوتا ہے، کوئی آئے یا نہ آئے، میں اپنا فرض پورا کرتی ہوں، کیونکہ میں اللہ کے لیے کرتی ہوں کہ دیکھیں یہ ہماری اس لوگوں کا جو ہے حق ہے۔ اسے میں یہ نہیں دیکھتی کہ میرے آفس میں مسلم لیگی ہے یا کون ہے، جو بھی اس مسلم لیگ کا ہاؤس ہے، اس گھر میں جو بھی اندر آ جاتا ہے، یہ دہلیز جو بھی پار کر کے اندر آ جاتا ہے، تو پھر میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایز اے ممبر آف پروونشل اسمبلی میں ان کا کام کروں۔ ٹھیک ہے، پارٹی نے آپ کو کتنی بار مخصوص نشستوں پر منتخب کیا، اور آپ کا تجربہ کیسا رہا؟ بالکل، یہ میری تیسری دفعہ ہے کہ مجھے پارٹی نے ایم پی اے کے لیے منتخب کیا۔ اس دفعہ تو میں ایم این اے کے لیے بھی آئی تھی، لیکن پھر وقت اور اس میں جب نام آیا بھی، تو میں نے یہی مناسب سمجھا، جو کہ ہماری اپنی سیٹیں ہیں، جو ہمارے اپنی ممبران کی اس پہ آئے ہوئے ہیں، کہ میں اس پہ 1 نمبر پہ تھی، تو میں اسی پہ میں نے اسٹے کیا، اور میں ادھر ہی صوبے میں رہی ہوں، تاکہ میں اپنے صوبے کے عوام کے ساتھ، ان کے ساتھ ان ٹچ رہوں، اور ان کے مسئلے مسائل جو اس صوبے کے 18ویں ترمیم میں چینج جتنا آیا ہے، تو صوبے کے کام صوبے میں ہی ہو سکتے ہیں، وہ پاک سے نہیں، تو میں نے عوام کے خاطر ہی اس پروونشل اسمبلی کا سیٹ کا جو ہے انتخاب کیا، اور میں ادھر ہی رہ گئی ہوں۔ اچھا، سیاست میں آپ بحیثیت ایم پی اے، وومن ایم پی اے، آپ کو کیا بڑا چیلنج تھا، اور سیاست میں آنے والی لڑکیوں کو آپ کیا مشورہ دیں گی؟ دیکھیے، سیاست میں آئے، سیاست ایک بیسکلی ایک عبادت ہے، خدمت خلق ہے، اور یہ اسی کی بنیاد پہ آگے آپ کو یہ جو ہماری اسمبلی کا ہے مجلس شورا، اس میں بیٹھنا اور اس میں لیجسلیشن کرنا، اپنے عوام کے لیے اس کا دکھ درد سمجھ کے اس کے مطابق پلاننگ کر کے اس میں حصہ ڈالنے کے لیے، تو میرے حساب سے جو پراپر جس ممبر آف پروونشل اسمبلی کا جو مطلب ہے اسمبلی میں بیٹھنے کا، وہ ہے لیجسلیشن، اور عورتوں کے لیے اس کا بہت زیادہ موقع ہے کہ وہ اس لیجسلیشن آگے سے کرے۔ ہم نے اس طرح
बहुत से वुमेन काकस भी बना है, उस पे के मुताबिक भी हम वुमेन्स का जो है हकूक के लिए आवाज उठाते हैं। जहाँ जहाँ भी हमारी इस सूबे में जहाँ जहाँ भी औरतों के साथ कोई ज्यादती होती है, उनके हकूक के लिए हम असेंबली फ्लोर पे भला पार्टियों के उससे बलातर होके इकट्ठे होके, जितनी भी हमारी अभी 27 हमारी औरतें हैं और 26 जो है रिजर्व सीट पे हम हैं, तो हम मिल के वुमेन के हकूक के लिए आवाज उठाते हैं और उनके लेजिस्लेशन में भी भरपूर सब आगे आते हैं। और जहाँ जहाँ भी जरूरत होती हो तो हर एक औरत ने खुद पहुंचा, तो हर एक की ये ख्वाहिश होती है, ये नहीं कि मैं कर रही हूँ, मैं सबको दाद देती हूँ। जो भी टीम आया हुआ है वो एक एक से बढ़कर है और उसमें लेजिस्लेशन में और उसमें हिस्सा ले रहे हैं कि वो अपने हलके के लिए असेंबली के फ्लोर पे आवाज उठाएं, उनके लिए बात कर सके और आगे से लेजिस्लेशन में बढ़ा चढ़ा के आगे आए। आपने बहैसियत एमपीए अब तक ऐसा कौन सा बड़ा काम किया है जिससे आपकी सियासी मुखालिफिन मुतमईन हो जाए? देखिए, मैं जितना ये टर्नओवर मेरा 3 टाइम ये टर्नओवर है, ये मेरा थर्ड 2 तो गुजर गए हैं, तीसरा शुरू है। इसमें मैंने अगर मैं इज्तिमाई इस तरह काम किए हैं तो सवाबी में शाह मंसूर गांव जो है उसके लिए सुई गैस का मैंने खुद गई हूँ, उसका के लिए बड़ा ये प्रोजेक्ट मैंने खुद जाके बैठ के शाहिद खान अब्बासी साहब से मंजूर कराया था, किया है। और इस तरह मैंने मिनरल के जो एडी डायरेक्टर्स हैं उनके लिए टेक्निकल अलाउंस थे, जिसके लिए मैंने असेंबली के फ्लोर पे बार बार आवाज उठा के उनके लिए वो अलाउंस मंजूर कराया है। इस तरह कंप्यूटर ऑपरेटर थे और इनको जो है चारों सूबों में उनके लिए जो उनके ग्रेड अपग्रेड नहीं होते थे, बाकी सूबों में होते थे, और वो कई सालों से अगर कोई 12 ग्रेड में भर्ती हुआ था तो वो 12 ही में था, आगे से उसको प्रमोट नहीं कर रहे थे। अगर कोई 7 में था तो आगे से नहीं थे। उनके लिए जिस तरह और सूबे में रिवाज है और सूबों का जो तरतीब है उसी में उनका किया है। बाकी जो है सबसे पहले जिससे मुझे इत्मीनान है और जिससे मुझे खुशी है, लाइक 2014 में मैंने एक कनाडा में अल्बर्टा प्रोविंस के साथ, जहाँ मेरा घर भी है, मेरे हस्बैंड भी उधर रहते हैं, और उधर से मैंने बात की थी ताकि अल्बर्टा के साथ केपी जो है ये एज एजुकेशन में सिस्टर प्रोविंस ले लें और काम करे। तो उनकी ये रिकमेंडेशन उस वक्त थी कि केपी को के जो एजुकेशन है प्राइमरी स्कूल से, जब हमने सारा पैटर्न उनको बता दिया तो उसने कहा कि जो सरकारी स्कूल है उसमें बाज़ जगहों में पश्तो में और बाज़ जगहों में उर्दू में ये इनिशियल जो सब्जेक्ट है ये सारे पश्तो और उर्दू में पढ़ाए जाते हैं, और सिर्फ एक इंग्लिश का सब्जेक्ट होता है। और फिर जाके आखिर में डायरेक्ट ग्रेड 11-12 में जब इनकी कंपटीशन के एग्जाम होते हैं तो वो सारे सब्जेक्ट इनके इंग्लिश में आ जाते हैं, जिसमें से सरकारी स्कूलों के जितने भी बच्चे थे वो बिल्कुल साइड पे हो जाते थे, और सिर्फ ये प्राइवेट स्कूलों के जो बच्चे हैं वो आगे डॉक्टर इंजीनियर या PMS-CSS या इस तरह कोई और भी एग्जाम है सारे वो लोग करते थे। तो फिर उसी वक्त से अभी मेरे ख्याल से 10 साल तो गुजर भी गए कि इट वाज 2015 के फिर परवेज खटक साहब ने इसकी रिकमेंडेशन दी, उन लोगों ने लेटर किया कनाडा से कि पहले आप अपना एजुकेशन का जो ये सिस्टम है ये इंग्लिश में कर दें। तो उसके बाद हम आप लोगों से आगे कोई भी कोऑर्डिनेशन हो या कोई भी बात हो इस तरह हो तो तभी होगा, क्योंकि सारे सूबे में बराबरी का वो हो, ये अनएजुकेटेड और ये जो है अगर ये खत्म होगा तो ये इस तरीके से होगा। तो फिर वो जो काम हो गया था उस वक्त, क्योंकि उसकी इनिशिएटिव मैंने ली थी और उसका वो मैंने स्टार्ट किया था, और फिर वो परवेज खटक साहब की बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ कि उसने फिर उस पे ये अमल किया, बहुत जल्दी उसने नोटिफिकेशन कर दिया। और अभी जो बच्चे मेरे ख्याल से क्लास 10 में होंगे वो एग्जाम दे रहे होंगे, ताकि अगर वो प्राइमरी स्कूलों में होंगे ये मैट्रिक में भी होंगे तो वो बेच अभी 10 तक पहुंच गया होगा कि उसका जो एजुकेशन है वो अब अगर वो साइंस पढ़ना चाहते हैं तो वो भी
आसानी से इंग्लिश में वो सारे उनको होगा कर, मैथ्स है, साइंस कोई सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये सारी उनकी जो है वो इंग्लिश में होंगे। अगर सूबा शाहिद आज एमपीआई ना होती तो कौन सी शोबे के साथ वाबस्ता होती और किस पोजीशन पर आज होती? Construction, because I have like the construction business before, और अभी भी है थोड़ा बहुत मैं कर लेती हूँ। ये कंस्ट्रक्शन का शौक है क्योंकि मेरे नाना भी सिविल इंजीनियर थे, मेरे फादर भी सिविल इंजीनियर थे, तो बचपन से यही सुनते आ रही हूँ। जब मौका मिला कि मैं आगे से कुछ कर सकूँ तो मैंने कंस्ट्रक्शन की एक कंपनी ओपन की थी और मैंने एफडब्ल्यू के साथ जो है बिजनेस किया था उसमें 2013 तक, एमपीए तक मेरे प्रोजेक्ट चल रहे। मैडम साहब, आप ज़िमनी इंतखाबात में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने क्लीन स्वीप किया, क्या पीपल्स पार्टी पर इन्हिसार करना पड़ेगा? देखिए, ये जो मौका था, अगर आपको पता है कि अगर पीडीएम की एक हुकूमत बन गई थी जो कि उस वक्त इमरान खान पे अदम इतिमाद का वोट आया और एक पीडीएम की हुकूमत बन गई मिलजुल के, इसके पीछे जो रास्ता, उस वक्त इमरान खान खुद कह रहे थे कि मुल्क डिफॉल्ट हो रहा है। उसने अपनी जबान से खुद ये चीजें इकरार की थी और यही हमें सुनने में आ रहा था कि पाकिस्तान से श्रीलंका बन रहा है बहुत जल्द, और हम जो कि लोग गुर्बत और रोटी और उसके लिए चीख रहे थे, हमें अपने मुल्क की वो पड़ गई थी कि हमसे मुल्क न छीना जाए, इस पे किसी और की हुक्मरानी आना जाए, हम डिफॉल्ट में ना जाए। तो ये एक ख्वाहिश थी, एक दिल में सबकी ये बात आ गई थी कि ये, क्योंकि एक बात शुरू हो गई थी कि हम इतने लॉसेस में हैं, हमारे साथ ये है वो है और हम श्रीलंका बन रहे हैं। तो इस वजह से फिर उस वक्त भी जरदारी साहब और सब ने मिल के जो है पीडीएम की हुकूमत बनाई, जिसमें शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि मुल्क रहेगा तो पार्टी पार्टी खेलेंगे, जब मुल्क ही नहीं होगा तो क्या पार्टी पार्टी खेलेंगे। और आज अल्लाह का शुक्र है कि वो मुल्क जिसका बकौली इमरान खान श्रीलंका बन रहा है, जो कि डिफॉल्ट हो रहा है और सब कुछ खत्म है, नहीं है, और तनख्वाही नहीं थी। अगर आपको पता है, तनख्वाही भी यकम को अपने हमारी लोगों को नहीं मिलती थी, 4-5 दिन बाद मिलती थी और मुश्किल से तनख्वाहियों के लिए सब परेशान थे। वफाक सूबे वफाक की तरफ देखते थे, वफाक सूबों की तरफ देख रहा था। और आज हमारा पाकिस्तान है, जैसा कि मराका हक का जो जंग हमने वो किया और दुनिया में जो है हमारे नाम है पाकिस्तान का, हमारे पासपोर्ट की इज्जत हो रही है। अब देखे जो कल लंदन के एक जरीदे में, उसमें अखबार में जिस तरीके से हमारी फील्ड मार्शल की तारीफ की है और उसको पावरफुल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और पूरे उसका बताया गया है, और जिसपे हमें फख्र है। ट्रंप ने देखे इतने ममालिक हैं, कितने मुल्क हैं, मेरे हर 200-300 तक कंट्रीज है दुनिया में, और उसमें जो वीटो पावर जो यूएस है और अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है वो हमारी पाकिस्तान का नाम बार बार ले रहा है, शहबाज शरीफ का नाम ले रहा है, फील्ड मार्शल का नाम ले रहा है और उससे खुश है। तो ये हमारे लिए खुशाइन बात है। आप लोग समझते हैं कि अवाम आपके साथ है, तो क्या आप समझते हैं कि सूबाई जो आप लोग की क़ियादत है पार्टी की, आप उनसे मुतमईन है? क्या आने वाले इलेक्शन में आप लोग जीत जाएंगे केपी से? इंशाल्लाह, जिस तरीके से डॉलर स्टेबल हो गया है, जिस तरीके से हमारी रोजमर्रा की रवा दवा स्टार्ट हो गई है और लोग मुतमईन है, इत्मीनान में हो गए, पूरी दुनिया में पाकिस्तान की और इसकी जो है आ रही है और बहुत इज्जत हो रही है, और जो बहुत जल्द ये सीपेक का जो सिलसिला है, जब ये कंप्लीट होगा, आप देखेंगे अगर हमारे पाकिस्तान का ये जो एक कमरे की जगह भी है वो भी बहुत कीमती होगी। और मैं आपको ये भी यकीन दिला रही हूँ कि अगर ये रूट और ये गवादर स्टार्ट हो जाए, ये सेंट्रल एशिया का ये रूट बन जाए सीपेक का, तो आप यकीन करें हमारा एक कमरा भी डॉलरों में, लाखों डॉलरों का होगा। और बहुत जल्द ये
दिन आने वाली है। हमारा जो पाकिस्तान है जोग्राफिया लिहाज से ये बहुत कीमती जगह है। अच्छा, खैबर पख्तूनख्वा में सुहेल अफरीदी, पंजाब में मरियम नवाज, आप किसकी कारकर्दगी को बेहतर समझते हैं अवाम के लिए? क्योंकि आपकी सियासी मुखालिफिन मरियम नवाज पर इल्जाम लगा रही है कि उसकी कारकर्दगी सिर्फ टिकटॉक और सोशल मीडिया तक महदूद है, बाकी कारकर्दगी जीरो है। आप क्या देखिए, आप जाके आपने ये सवाल भी किया, ये भी मैं तौहीन समझ रही हूँ कि आप मरियम नवाज के बारे में किसको सुहेल अफरीदी को या किसको मिला रहे हैं। देखिए, आप जाके पंजाब में खड़े हो जाएं, इधर से जाके अटक में खड़े हो जाओ ताकि आपको फर्क होगा। ये 7वें नौशेरा है या उसमें आपको इन दोनों लोगों की जिंदगी का भी आप लोगों को पता चल जाएगा कि उनके साथ कितनी सहूलतें हैं। दूर ना जाएं, ये अटक और नौशेरा है, फिर ये हरिपुर के साथ भी टच है, गाजी के साथ भी ये इनके टच है। अब जाके उधर से दोनों जगहों के देखे ना, हमारी केबीके के रोड्स देखे और 2 फुट में फिर ये 10 मीटर में फिर देखे पंजाब के, तो क्या हो रहा है। फिर आगे से खानपुर देखे, आगे से फिर हसन अब्दाल के साथ फिर पंजाब और ये देखे, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि पंजाब क्या है और केपी क्या है, केपी की क्या कारकर्दगी है और पंजाब की क्या कारकर्दगी। अच्छा, अगर आप समझते कि पाक हुकूमत वाकई अवाम की हुकूमत है, तो फिर क्यों इमरान खान की बहन और पीटीआई क़यादत को इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त नहीं मिलता? क्योंकि सुहेल अफरीदी ने मीडिया को बताया था कि नवाज शरीफ को मैंने रिक्वेस्ट किया था, दरख्वास्त किया था कि मुझे इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त दी जाए, लेकिन उसने कहा था कि मैं पूछ कर बताऊंगा। क्या ये वाकई रिमोट कंट्रोल हुकूमत है या वाकई अवामी हुकूमत? देखिए, अगर आप इधर से इस ऑफिस में आने से पहले बाहर कहें कि मैं जाके मुस्लिम लीग के दफ्तर पे हमला करूंगा, ठीक है, या मैं आपके ऑफिस में आने से पहले बात करूं मीडिया पे कि मैंने अभी जाना है और आपके मीडिया के दफ्तर पे हमला करना है, ठीक है, और हम जबरदस्ती जाके आपसे मैंने मिलना है, तो आपके कोई चौकीदार मुझे अंदर जाने देगा? बिल्कुल नहीं। जब वो चौकीदार जो कि 25,000 की सैलरी लेगा, वो किस चीज की चौकीदारी कर रहा है? वो इसकी चौकीदारी कर रहा है कि उसकी मुहाफिज बन जाए ना, और जब उस मुहाफिज को टीवी के जरिए पता चल जाए, लेकिन चौकीदार तो हमेशा मालिक का मानता है ना, मालिक का मानता है, लेकिन जब मालिक को भी पता हो और वो भी सरकारी रियासत हो, सरकारी जगह हो, मालिक का नहीं होगा, ये किसी का नहीं, ये हुकूमत है और हम सब इनके नौकर है जितने भी है। अगर हम इसकी मुहाफिज है फॉर द 5 years, लेकिन अगर हमें ये पता हो कि इधर एक बंदा आएगा, उसने ऐलान कर दिया है कि मैंने जाके हमला करना है और जबरदस्ती उसको निकाल के लेके आना है, नहीं, अब नहीं समझते पार्लियामेंट तो सुप्रीम है ना, पावरफुल है, फिर क्यों कमजोर है? आपको किसने कहा है कि पार्लियामेंट कमजोर है? और वो है, पार्लियामेंट ने तो देखिए 27वीं तरमीम पास कर ली है और 27वीं तरमीम पर पीटीआई समेत मुख्तलिफ सियासी जमात एहतजाज कर रही है कि ये सिर्फ फर्द वाहिद के लिए ये तरमीम किया है। आप क्या समझते, तरमीम वाकई अवाम के लिए? देखिए, फर्द वाहिद के लिए कहा, अगर फील्ड मार्शल को चारों इनको जब अभी जंग हुआ है प्रॉपर तरीके से और पाकिस्तान जीत गया, जिस तरीके से मिसाइलों के जरिए जिस तरह उनके जहाज गिराए गए, राफेल उसको गिराया गया, और जिस तरीके से घंटों में पूरी इंडिया जो बहुत ताकतवर, जो समझ रही थी कि हमारे साथ 15, 20 और 30 लाख फौज है, उनको जमीन दोस्त कर दिया, ठीक है, जमीन बोस हो गया। और उनको अब देख लें कि उनको उस वक्त फील हुआ कि पूरी दुनिया में एक जर्नल होता है जो नेवी को भी और एयरफोर्स को भी और सारी फोर्सेस को हालाती जंग में और इसमें कंट्रोल करता है, एक ही सरबराह होता है। इस जंग में उस चीज को फील किया गया, महसूस किया गया, वो हमारी पार्लियामेंट में भी और हमारे उसने, क्योंकि उस वक्त भी हमारे फील्ड मार्शल साहब ने लीड किया, लेकिन मशावरत के साथ, कानूनी उस पे नहीं था, मशवरे दिए, वो उस चीज को उन लोगों ने लीगलाइज किया कि ये एक जरूरत है कि अगर फिर हमारे पाकिस्तान पे इस तरह मौका हुआ है तो यही तरीका, जिस तरह पाकिस्तान में ये है, ये इंडिया में भी है, लंदन में भी है, बाकी कोरिया में भी है, जहाँ जहाँ अच्छे अच्छे आर्मी है, चाहे यूएस में है, उन सब का यही तरीकाकार है।
وقت کی उसी ضرورت तरीके था। वक्त की जरूरत था और उसके मुताबिक ये हुआ. ये पाकिस्तान की जरूरत है, ये किसी की मूड पे और इस पे ये बात नहीं थी. मैडम साहिबा, IMF ने वफाक हुकूमत को चार्ज किया है, 5,300 अरब रुपए करप्शन का इल्जाम लगाया है. क्या आप नहीं समझते कि वफाक हुकूमत को इस्तीफा दे दे, या आप लोग किस तरह इसको दिफा करेंगे इस करप्शन की? देखिए, जो करप्शन है पाकिस्तान में है, चाहे दुनिया के किसी भी मुल्क में कहीं भी है, ये एक ऐसी वबा है, ठीक है, और ये इस तरह फैल चुका है. और कि ये किसी मतलब पार्लियामेंट या कि वज़ीर आज़म उसकी बात नहीं है. अगर आप अभी अपनी इस डिपार्टमेंट के साथ है या मैं हूँ और उसमें मैं करप्शन करूँ तो मुझे तो ऊपर से नहीं कहा गया कि हमें दिए थे. अगर इस तरह किसी ऑफिस में कोई चौकीदार है और अगर वो उधर से कोई उसको 100 रुपए दे के मुझे अंदर कर दे तो अपनी जरूरत. अगर मैं आपको ये बताऊं कि मेरे ख्याल से जो हमारे मुल्क में अभी तक जो तनख्वाहें हैं सरकारी अफसरानों की या उसकी, वो बहुत कम है. और उसको मतलब आप देखिए, आपके बिल आपके पास कितना आ रहा है, पेट्रोल कितना महंगा है, और एक बंदा जो घर का सरबराह होता है, एक फैमिली उसकी औरतें वगैरह काम नहीं करती, सिर्फ एक बंदा काम करता है, और जो उसकी सैलरीज और तनख्वाह होती है वो उनकी अखराजात किस तरह उससे वो कंप्लीट होंगे. अच्छा मैडम साहब, NFC वार्ड पे आता हूँ. आजकल सूबाई हुकूमत काफी गिले शिकवे कर रहे हैं वफाक हुकूमत से. क्या आप इस सूबाई हुकूमत के साथ है? आपका मौक़िफ़ भी ये है? क्यों बिल्कुल. अब क्यों वफाक हुकूमत इस हवाले से नाकाम है? क्या वजह है? देखिए, हम NFC अवार्ड जो है ये हमारी सूबे का मसला है, ये हमारी पार्टियों का मसला नहीं है. इसमें हम सब एक होके सारी पार्टियां, बल्कि सारी खैबर पख्तूनख्वा की अवाम जितनी भी है, जो असम्बली में जिस पार्टी से भी ताल्लुक है, हम इस पे खड़े हैं कि जो हमारी हकूक है वो हमें दे दे. और जिस तरीके से अगर फाटा जो हमारे साथ मर्ज एरिया जो अभी हमारे साथ है, एक्स फाटा जो थी मर्ज हुआ है, तो उनकी भी जो हिस्सा है वो भी हमारे NFC अवार्ड में ज्यादा कर दिया जाए. और साथ साथ में देखिए, पंजाब को भी मतलब पॉपुलेशन के मुताबिक ज्यादा दे रहे हैं, बलूचिस्तान को एरिया के मुताबिक ज्यादा दे रहे हैं, सिंध को भी इस तरह दे रहे हैं. हमें भी जो है ये अगर दहशतगर्दी और इस पे 1% मिल रहा है तो ये कब तक हमें भी अपने हकूक, जितनी भी हमारी लिटरेसी रेट है और जिस तरह मतलब बैकवर्ड भी हम हैं, सबसे ज्यादा है, हमारे हिसाब से हमारा हिस्सा सबसे अभी भी बहुत कम है. तो इसका मुनासिब दोबारा इसकी बहुत मेरे ख्याल से 2010 से दोबारा इसका वो नहीं हुआ है मीटिंग, और ये होना चाहिए और हमारे सूबे की जो हकूक है वो हमें देने चाहिए. मैडम साहब, अच्छा मैडम साहब, आपने सूबाई असम्बली के फ्लोर पर एक पुश्तों में शेर सुनाया था. उस शेर के बाद सोशल मीडिया पर मेम की एक तूफान बर्पा हो गई. कुछ लोगों ने बहुत पसंद भी किया, लेकिन कुछ लोगों ने तनकीद करते हुए कहा कि अगर आपको शायरी नहीं आती तो फिर आप क्यों बोलती है. मैडम, इस शेर के पीछे क्या था और क्या आपने उस शेर अभी सीखा है? नहीं, देखिए, बात दरअसल ये थी कि मैं खड़ी हो गई थी और जब मैं बोल रही थी तो दरमियान में वो गनी उनका MPA है वो साथ साथ खड़े होता था, PTI का, क्योंकि उस वक्त मैं ये सोहेल अफरीदी के साथ लड़ रही थी और वो अब अभी आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि वो उसका बंदा है और वो मेरे सामने बैठा था और वो चीख रहा था जब वो चीख रहा था तो मैं चुप हो जाती थी ना, जब स्टार्ट हो गई थी और कोई आपको चीखे, लेकिन वो माइक में मेरी आवाज आ रही थी और उसकी आवाज नहीं आ रही थी, तो लोगों को वो तो इसके पीछे दास्तान क्या था? इस शेर के पीछे क्या साबित करना चाहती थी आप? नहीं, वो तो उस वक्त बजट का सेशन हमारा चल रहा था ना, और बजट में हम ये इनको कह रहे थे कि जितने भी मतलब ये लोग ये जो पैसे हैं जितने ये इस लोगों ने अपने दरमियान खर्च कर दिए. अच्छा मैडम साहब, आप वाकई बहुत एक्टिव हुए सूबे में और आप सूबे असम्बली में काफी एक्टिव हुए, लेकिन आप पर इल्जाम है कि आप असम्बली में शोर शराबा करती है, सेशन में खलल डालती है, खुद को भी तंग करते हो और दूसरों को भी तंग करते हो. क्या वजह है? देखिए, अभी जब से हमारी मेंबरान ज्यादा हो गए हैं तो आप लोगों ने मुझे नहीं देखा होगा कि मैंने कोई खलल डाला हो या मैंने कोई, उससे पहले मैं अकेली होती थी और बहुत हमारी तादाद जो थी वो 12 या 20-21 थी और 21 बंदों में मैं ज्यादा से 4-5 बंदे होते थे, मैं अकेली होती थी. तो मैं जब अकेली होती थी और ये लोग
99-100 ہوتے. تو ان کی جو قانون سازی ہوتی تھی میں پراپر بیٹھتی تھی, اور جب ان لوگوں کے لوگ کم ہوتے تھے تو پھر بھی آپ کو قانونی طور پہ جب لوگ کم ہو تو کوئی بھی قانون سازی نہیں ہو سکتی نا, کہ کم سے کم 2/3 38 بندے تو ہونے چاہیے نا. اور اس پہ یہ لوگ غلط کرتے تھے تو میں بیٹھتی تھی اور میں جسٹ ان کے ساتھ رولز کے اوپر جاتی تھی. یا کوئی پارلیمانی سیکٹری جو قانون میں نہیں تھا کہ وہ چیئر کر سکتا ہے, یہ لوگ بتاتے تھے تو میں اکیلی بیٹھ کے ان کو کہہ دیتی کہ یہ قانون اور رولز میں نہیں ہے. تو میں اپنی قانون اور آئین اور اس کی پاسداری کر رہی تھی صرف, ٹھیک ہے, اور ان کو بتا رہی تھی کیا پوزیشن ہے آپ لوگوں کی. اگر آپ کوئی غلطی کریں گے تو اگر ہم کم ہے, تعداد میں کم ہے, لیکن میں ہوں کہ میں آپ کو پوائنٹ آؤٹ کروں اور وہ میں بتاتی تھی وہ چیز. ہاں یہ میرا حق تھا, میں نے کوئی شور شرابہ نہیں کیا. آپ لوگ ریکارڈ پہ ابھی بھی ہے دے کے, اگر کوئی بل آتا تھا تو اس میں امینڈمنٹ لے کے آتی تھی تاکہ جو چیزیں ہوتی تھی اس میں منع کرتی تھی. اگر اس طرح کوئی یہی میں جو کی کوئی غلطی کرتے تھے قانونی طور پہ رولز کے مطابق کوئی غلطی تو وہی پوائنٹ آؤٹ کرتی تھی, کیونکہ وہ میرا ایکسپیرینس تھا 12 سال سے جو میں دیکھ رہی تھی. تو ان کو فری ہینڈ نہیں دے رہی تھی تاکہ یہ نئے لوگ ہیں تاکہ یہ لوگ سیکھ لیں. گڈ. آخری سوال میڈم صاحب, آپ نے حال ہی میں ایک توجہ دلاؤ نوٹس جمع کیا ہے ٹورازم پولیس کی تنخواہوں کے عدم ادائیگی کی تنخواہوں کے حوالے سے, اب اس کی وضاحت کریں, یہ کیا وجہ؟ دیکھیے 6 مہینوں سے ہماری یہ ٹورازم کی پولیس ہے, ان لوگوں نے تنخواہیں نہیں لی ہے. تو اب یہ ڈیوٹی کے لیے بھی جاتے ہیں, کیونکہ اگر یہ ان کا یہ ڈر ہوتا ہے کہ ہم ڈیوٹی کے لیے نہ جائیں تو ہمیں نکال دیا جائے گا. تنخواہ وہ لوگ دے نہیں رہے, تو اب جب جائیں گے روزانہ تو یہ 400-500 روپے تو آپ کے لگ جاتے ہیں نا کرائے پہ بھی, اگر یہ نہیں کہ 200-300 تو موٹر سائیکل پہ بھی اس پہ بھی لگتے ہیں. تو جیب سے وہ دینے پڑ رہے ہیں, اور یہ ان لوگوں کے پاس کم سے کم یہ بیسک سیلریز تو ہر بندے کا حق ہے, اگر وہ اپنی ڈیوٹی کر رہا ہے تو ان کو ادا کی دی جائے. تو اس کے لیے میں نے یہ کل اٹینشن کی تاکہ یہ ہمارا ایک وہ ہے کہ میں ان کے لیے آواز اٹھا سکوں, اور ان کو اپنے حق, کہ ان کی بیویاں ہوں گی, اس کے بچے ہوں گے, وہ کہاں سے کھا رہے ہوں گے, وہ کیا کر رہے ہوں گے. یہ ہماری ریاست کی اور ہماری حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہر باشندے کو وہ کم سے کم کھانا, اور اس کو جو ہے وہ فنڈامنٹل رائٹ ہے ہمارا کہ یہ دے. اچھا میڈم صاحبہ, آج کا جو حالات ہے ٹیررزم ہے کے پی میں, بلوچستان میں, آپ پی ٹی آئی سمیت پاکستان کے تمام سیاسی جماعتوں کے کارکنان اور اپنے حلقے کارکنان کو کیا پیغام دینا چاہتی ہے؟ دیکھیے میں جو حالات ہے کے پی کے روز میں دیکھ رہی ہوں, جو ابھی اے سی ہمارا پرسوں شہید ہوا 4 اس کے ساتھ جس نے ہماری فوجی شہید ہو رہے ہیں, پورے عوام کو یہ بات کرنا چاہتی ہوں کہ جہاں جہاں ان کو کوئی بھی اس طرح مشکوک بندہ لگے, جو ہمارے لوگوں کو ان کو یہ لگے کہ یہ ابھی وہ بم بلاسٹ کرنے والا ہے یا اس طرح کوئی کارروائی کر رہا ہے, یا وہ مینٹلی ہیلتھی نہیں ہے تو اس کے لیے پاگل خانے بھی ہے, یا کسی کا بچہ اس طرح اس راہ پہ گامزن ہو اور ان کو شک ہو جائیں, پوری طور پہ پولیس کے ساتھ کانٹیکٹ کریں, اور اپنے اور ہماری اس بہن بھائیوں کے اور بچوں کے اور ان کے محافظ ہر بندہ خود بنے. اگر یہ خود نہیں نکلتے اور اپنے ملک کے محافظ نہیں بنتے تو اس طرح لوگ آ کے روزانہ ہمارا یہ ایک ڈر ہوگا, ایک خوف ہوگا کہ کوئی آ کے خودکش دھماکہ کرے گا اور ہم ختم ہوں گے. تو یہ کام ہم نے خود ایک فوج بن کے, ایک سب نے مل کے, ایک پاکستانی بن کے, پاکستان کے محافظ بن کے اس کے لیے ہم نے کھڑے ہونا ہے, اور جہاں جہاں ہمیں نظر آئے تو ہمیں پولیس کو سب کو انفارم کر کے اس کا خاتمہ کرنا ہے, خود خاتمہ کرنا ہے. جس طرح سوات میں سب لوگ نکلے اور دوبارہ ان کو انٹری نہیں تھی, تو اس طرح کسی کو انٹری نہ دے, ان کو کسی تھوڑے سے پیسوں کے لیے فیسیلیٹیٹ نہ کرے, کوئی جگہ نہ دے, چاہے وہ ایکسپاٹا میں ہو چاہے ادھر ہو, تو ان لوگوں کو شیلٹر نہ دے.